question is you have to do some operations. So maximum price and minimum price you have to print or display. So display maximum price and minimum price of all the products, among all the products, where price of product cannot be changed, that is, it is immutable. So when it is immutable, you will create a tuple here. So I am giving the name of the tuple as price, and you can ask the user to enter all the marks using eval method, or you can directly enter all the price. Now first product price is 45, then so these price of all the products are entered in this. So this is a tuple. Now your question is to display the maximum and minimum. So using a function, if it is written without using built-in function, display maximum price and minimum price of all products without using built-in function. Then you will use this process without using built-in function. Now we will use two variables here, max equals to, now any value you can give. I am giving the first value of price, so the tuple name is price, and I am giving the first value to max as well as to min, both. First value I am giving, and then this is your min variable. Two variables I have taken. Now I will use for, and I will take one by one. So for for p in price, price is the name of the tuple, so one by one element it will take, and then you will check if your max is less than price, it will take the value of price so that it can store the maximum value. So this is over. Now for minimum also you will do the same thing. You will use a separative, and if min is greater than price, then you want to take the value of minimum. So minimum price will be equal to, min will be equal to price. So this is over. Now you print the maximum price of all the products. So outside the loop I am printing here maximum price is, so these programs already you have done using list, dictionary. Now the same type of questions and same methods, there also you can use directly built-in function where you were using max of the name of the dictionary in square bracket values, then it is showing the maximum value. And here in tuple what we are doing, same thing we are doing but without using built-in function. So directly I have taken a max variable and min variable, and I am just checking it, and now minimum price is, you will print minimum value, so comma min. This is over. Execute and see whether it is correct or not. What mistake I have done here? For p in price, so p you have to take, you cannot take price here. One by one value who is taking? P is taking. Price means the whole tuple, it is not possible. So one by one value is stored in p, so it will compare with p. It cannot take the whole value and compare it. Yes, now it is correct. So you can see maximum price is 98 and minimum price is 22. It is clear now? Now suppose your question is the total price and the average price of the same question. Same question. I'm changing here as total and average price. Total and average price without built-in function. So here what we will do, a sum variable you will take which is equals to 0. पूछो मैम वो एरर क्यों हुआ? आपने प्राइस जब लिखा था वो एरर क्यों हुआ? प्राइस में क्या था? प्राइस में सारे वैल्यूज थे.
अब तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया था, यहाँ पे मैक्स को कंपेयर कर रहे थे। मैक्स में पहला वैल्यू है 45 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो अब हम एक वैल्यू के साथ ही हम टपल के साथ एक इंटीजर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। पी क्या कर रहा है, एक एक करके प्राइस ले रहा है। फॉर में ये जो फॉर स्टेटमेंट है, फॉर में क्या हो रहा है, पी एक एक करके, तो पहले इसने 45 लिया, मैक्स के पास क्या था, 45 ही था, तो 45 इक्वल्स टू 45, ये कम इफ ट्रू नहीं हुआ तो उसके पास 45 ही रहा, मैक्स और मिन के पास 45 ही रहा। जब सेकेंड टाइम लूप आया तो फॉर पी इन प्राइस, सेकेंड लूपिंग में सेकेंड वैल्यू को लेगा। पी क्या कर रहा है, प्राइस से एक एक वैल्यू को जस्ट स्टोर कर रहा है, तो अब उसने 67 स्टोर किया। मैक्स के पास 45 है, 45 इज लेस देन 67, यस, मैक्स 67 को ले लेगा। मिन में 45 इज ग्रेटर देन नो, तो ये नहीं लेगा, तो मिन के पास 45 ही रह गया, मैक्स के पास 67 आ गया। नेक्स्ट टाइम लूप चला तो पी ने क्या लिया, 98, तो यहाँ पे पी एक एक करके वैल्यू ले रहा है, तो हम पी से कंपेयर करेंगे। प्राइस के पास तो पूरा टपल है, पूरे टपल को हम एक इंटीजर वैल्यू से, एक पार्ट ऑफ द टपल से हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इफ वाले स्टेटमेंट में उसने एरर दिखाया था। अब जब हमने पी लिखा है तो पी के पास एक एक वैल्यू है, तो अब हमारा आंसर शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब अभी हम लोग सम और एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने सम के लिए सम इक्वल्स टू 0 कर दिया है। तुम इसमें एक काउंटर भी लगा सकते हो, बिल्ट इन फंक्शन तो यूज करना नहीं है, तो मैंने एक काउंटर लगा लिया है। अब पी क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू उठा रहा है, और हमको अभी क्या करना है, एक तो सम और एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा, कितना सम है, और हमारा एवरेज आ जाएगा। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, ये तो हमने पुराने प्रोग्राम को कॉपी किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्राइसेस एंड एवरेज प्राइसेस आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पी के पास प्राइस है तो इसमें हम पी डाल देंगे, तो सीधे वो सम टोटल प्राइस हो जा रहा है। और सी एक काउंटर है, काउंट कर रहा है, तो सी प्लस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हम 1, ठीक है। अब जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो सी के पास कितने, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, और सम इसको पूरे को टोटल कर देगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एवीजी इक्वल्स टू सम स्लैश सी। जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे टोटल प्राइस तुम्हारा 335 है और एवरेज प्राइस 55.83 है। आगे समझ में कैसे रन हो रहा है। तो ये विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस हम इसमें कोई भी, सपोज क्वेश्चन पेपर में आ गया कि काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंट ऑफ द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 50, तो कितने हैं 50 से ज्यादा, वो उसको काउंट करना है। सी काउंटर लेंगे, फॉर करके एक एक प्राइस उठाएंगे, इफ करके चेक करेंगे, और फिर काउंटर को अगर इफ ट्रू है तो काउंटर +1 करके काउंट कर लेगा कि किसका किसका प्राइस 50 से ज्यादा है। अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज से हमने यूज कर लिया। अब हम स्ट्रिंग वैल्यूज को अगर टपल में डालते हैं, सपोज क्वेश्चन पेपर में आ गया नेम स्टार्टिंग विथ ए को प्रिंट करो, वेयर द नेम्स इन अ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड आर इम्यूटेबल। तो एक हमने टपल लिया है, इवैल करके भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली हम वैल्यू डाल देते हैं। अब इसमें हमने कुछ नाम डाल दिया, सपोज यहाँ पे हमने कुछ नेम्स डाल दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आया है कि, क्वेश्चन पेपर में आया है
कि किसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको प्रिंट करो, या फिर किसके नाम के एंड में ए है, या कोई भी क्वेश्चन कि किसके नाम में लेस देन 4 कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करो। तो इसमें कैसे करना है, सिंपली एक फॉर लूप हमको लगाना है एक एक नाम के लिए। तो यहाँ पे n इन t एक एक नाम को ये स्टोर करेगा। उसके बाद हमको चेक करना है अगर वो n का जो फर्स्ट कैरेक्टर है 0, सपोज a से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन पेपर में डिस्प्ले, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन डिस्प्ले नेम्स स्टार्टिंग with a stored in a tuple, names of tuple, names stored in a tuple which are starting with a, ठीक है, where the names are stored in a tuple। लिस्ट का भी आंसर सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या चेक कर रहे हो कि अगर वो ए है, कैपिटल ए भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग और करके कैपिटल ए भी लिख देंगे, और एन ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इसके लिए 0 लिखेंगे, और डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए। अगर स्मॉल ए है या कैपिटल ए है तो हमको क्या करना है, सिंपली उसको प्रिंट करा देना है। किसको, एन के पास ये प्रिंट स्मॉल लेटर में होगा, हो गया। When you will execute it, it will print only the name starting with A। आगे समझ में, तो इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर यूजिंग अ लिस्ट आता है, सपोज सेम क्वेश्चन यूजिंग अ लिस्ट आता है तो पूरा सेम रहेगा। टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि उसके वैल्यूज जो है टपल के इम्यूटेबल है। तुम एक वैल्यू को, अगर मैं अभी अमित को चेंज करने जाऊं, सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ किसी का नाम, टपल है ये, तो मैं t ऑफ 0 को मैंने चेंज करके यहाँ पे उसका नाम कुछ और दे दिया है, सपोज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सपोज लिखा है अमिताभ, तो ये एरर दिखा देगा। प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट टपल t, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को जब हम लोग लिस्ट में डालेंगे तो एरर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया हमने, बस। तो ये अब क्या बन गया तुम्हारा, yes, now this is a list, so in a list you can change the value, so now it will not show error। देखो ठीक है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन तो सेम ही था कि ए से नाम होने वाले, स्टार्ट होने वाले नेम्स, तो ये तो अमित सेम दिखाया। लेकिन जब चेंज करने के लिए हमने ये चेंज किया स्ट्रिंग को, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये लिस्ट हो गया। लिस्ट वैल्यूज आर म्यूटेबल, कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर में लिस्ट आएगा तो बाकी ऑपरेशन सारे सेम रहेंगे, खाली स्क्वायर ब्रैकेट और जो जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है ये लिस्ट में अलाउड है। लेकिन टपल में यू कैन नॉट चेंज एनी वैल्यू ऑफ अ टपल, इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पे नोट में लिख लो, सिंस इट इज immutable, tuple is immutable, it will show error in this message where you want to change the value of any value of a tuple। आगे समझ में, what is a tuple? Now tuple के बाकी questions क्या आएंगे, suppose prime numbers in a tuple, you have to print display prime numbers in a tuple। All the questions which we have done till now, prime numbers, odd numbers, even numbers in a tuple or composite, palindrome, Armstrong numbers. So all these questions you try it once. In next class, if you have any doubt in any of the question, you just
mention your doubts, and I am writing here all the questions. Even numbers present in a tuple, odd numbers, prime numbers, palindrome numbers, reverse of each number, display reverse of each number present in a tuple, then Armstrong numbers or odd numbers. Like this, all the questions which we have done using a list you have done till now. Now you will practice using a tuple. So you try all the questions. If you have any doubt in any question, you mention it. We will solve it in our next class.